Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Sunday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. Well, the numbers on which you can call us are as follows: 233-14444, 23421050 and 23310464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra. नमस्कार लालिमा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं: 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा जी, thank you, Subodh. Well, India is on a high growth trajectory and wants to grow with the world, says External Affairs Minister S. Jaishankar in Brisbane today. Indian startup ecosystem reaches over $12 billion in funding in first 10 months of this year. And domestic markets to focus on corporate earnings, US presidential polls, US Federal Open Market Committee meet for Qs next week. भारत तेज विकास के पथ पर है और दुनिया के साथ विकसित होना चाहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ब्रिस्बेन में कहा, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में साल के पहले 10 महीनों में $12 अरब से ज्यादा की रकम हासिल की और अगले सप्ताह देश के बाजारों की नजर रहेगी कॉरपोरेट आमदनी, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और अमेरिका के FOMC की बैठक पर। All right, let's begin with the first headline. External Affairs Minister S. Jaishankar today said India has put in place a framework in which relationship with Australia will grow further in times to come. Addressing the Indian community at Brisbane on the first leg of his two-nation tour, Mr. Jaishankar said India is on a high growth trajectory and wants to grow with the world. He said there is no doubt that the Quad ranks right up there and Australia is a founding partner of that mechanism in terms of our bilateral ties. He mentioned that there are numerous opportunities for global cooperation in the fields of education and research. During his visit, Jaishankar will inaugurate India's 4th consulate in Australia in Brisbane. He will also co-chair the 15th Foreign Ministers Framework Dialogue, FMFD, with his Australian counterpart Penny Wong in Canberra. He will deliver the keynote address at the inaugural session of the second Raisina Down Under to be held in the Australian Parliament House. On the second leg of the visit, Dr. Jaishankar will travel to Singapore for an official visit on the 8th of this month, during which he will address the 8th Roundtable of ASEAN, India Network of Think Tanks. He will also meet the leadership of Singapore to review the close partnership between two countries and explore avenues to further enhance the bilateral relationship. Well, we can talk on this a little later. Right now, we have a caller, Vikash, from calling us from Kolkata. In fact, we got his call even before we announced the telephone numbers, so it seems he's a smart and regular listener. Yes, Vikash, ask your question. Ji. Hello. He must be. हमारे ये उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ है और प्राइमरी स्कूल तक भी हमारे यहाँ गांव में ना छोटे से है, लेकिन हमारे अचानक कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है तो हम BSF का सहारा लेते हैं। Sorry for that soundbite. Well, anyway, let's get down to our
story with the External Affairs Minister going to Australia. What do you think, Akar? What are the ramifications of our Foreign Minister's visit to Australia? Definitely, Quad has kind of strengthened our ties with Australia, of course, to counter China. But on the economic front, you think that we look forward to some more product exchange? Every state, every country has their own good products which they can exchange with the other one. How do you view that? Yeah, definitely. And I believe in the long run it is going to be beneficial for the economy as well as the investors. So let's see. Yes, certainly. Oh, we are now joined by Satish calling us from Uttar Pradesh. Let's catch him. क्या पूछना है? Hello, हाँ सतीश. सतीश जी, हेलो, नमस्ते मैम. नमस्ते. क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप हमारे एक्सपर्ट से? मैम विषय क्या है? विषय है आपने म्यूचुअल फंड के लिए प्रोग्राम में फोन किया है. म्यूचुअल फंड. अच्छा, म्यूचुअल फंड के लिए सर ये हम करना चाहता हूँ. म्यूचुअल फंड समझेंगे जैसे कोई पैदा खेती बाड़ी पैदा करो तो उस पैसे में क्या व्यवसाय कर सकता हूँ? माफ करें, अभी ये थोड़ा सा मुझे लगता है डाइग्रेस हो गए. जी, हम म्यूचुअल फंड से ही जुड़े सवालों के जवाब दे सकते हैं. आज हमारा प्रोग्राम रविवार को मार्केट मंत्र में हम सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों पर ही चर्चा करेंगे. वैसे आकार, हमारे पास कई इस तरह के लोग फोन करते हैं जो शायद पहली बार निवेश करने वाले हैं. वैसे खेती बाड़ी का काम करते हैं, छोटा कोई कारोबार करते हैं, या बड़ी खेती बाड़ी करते हैं, बड़ा कारोबार करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की दुनिया से दूर हैं, इस निवेश की दुनिया से दूर हैं. अपने ट्रेडिशनल जो बाकी निवेश के तरीके हैं उन पर ज़्यादा आश्रित हैं. लोग एफडी करते हैं या कुछ और करते हैं. ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय हो कि इस दुनिया में कैसे कदम रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, आप उसके हिस्सेदार बन रहे हैं, आप ज़्यादा फायदा उठाते हैं. एफडीज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे एक आपको गारंटेड रिटर्न आते हैं, बट एक अगर आप इन्फ्लेशन की तरफ देखें, जो कि जिसको हम कहते हैं जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके मुकाबले वो महंगाई निकालने के बाद का जो रिटर्न है वो बहुत कम रह जाता है. तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए अगर आप एक जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कमाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में. तो दूसरी चीज, जो भी नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि सबसे पहले तय कर ले कि कम से कम जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको कम से कम 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, उससे कम के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि इक्विटी में थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए. और शुरुआती में आप एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए, जो कि आपके हर महीने आपके जो भी आप अमाउंट चुनते हैं, जो भी आप तारीख चुनते हैं, उस तारीख पे आपके खाते से थोड़ा थोड़ा उतना रुपया निकलता है और आपके जो चुना हुआ आपका फंड है उसमें निवेश आपका हो जाता है. आप जो पहला फंड चुने, आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड चुने. ये फंड इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है. इक्विटी जैसे कि हमने बात की कंपनियों के शेयर्स, और डेट आपका जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है वो भी आपका डेट में आता है, बट यहाँ पे आपका थोड़ा सा बॉन्ड्स की तरफ भी लग जाता है. उससे होता यह है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड एक आम इक्विटी फंड से थोड़ा सा कम गिरते हैं, तो एक नए निवेशक के लिए सही रहता है. जी, आइए, हमारे कॉलर आ गए हैं कोलकाता से. विकास, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. जी नमस्ते मार्केट मंत्री. नमस्कार. मेरा नमस्कार जी. नमस्कार. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं यहाँ से जी. डिटेल हम जैसे साधारण निवेशक के लिए. मेरे पास एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लेन ग्रोथ और रेगुलर प्लेन ग्रोथ 7 साल से है. उसके बाद फोकस इक्विटी, मल्टी कैप, बैलेंस एडवांटेज और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है. ये मैंने नया लिया और इस गिरावट में बहुत सारे मैंने ऐड भी किया. आगे मेरा डाइवर्सिफिकेशन क्या रहेगा और कोई एएमसी चुनना चाहिए क्या? मेरा 10 साल के लिए हॉरिजॉन्टल. देखिए, आपने जैसे कि बताया कि आपने एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड चुना है, ये एक अच्छा फंड है. इसके अलावा आपके पास एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है. वो फंड बहुत बेहतरीन फंड नहीं है, एक एवरेज फंड है, बट ठीक है, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं.
आपने इसके अलावा एक नाम बोला, आपने एएमसी का नाम शायद नहीं बोला, आपने एक बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव किया है। सो बैलेंस एडवांटेज फंड एक आम फंड से देखिए डिफरेंस ये होता है कि वो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है और उसका जो एलोकेशन है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो डायनेमिक होता है। उसका जो फंड मैनेजर है एक कुछ सर्टेन क्वांट पैरामीटर्स होते हैं या मार्केट कंडीशंस होती है जिसके बेसिस पे वो ये चुनाव करते हैं कि इक्विटी में कितना निवेश करना है और डेट में कितना निवेश करना है। तो एक अगर देखा जाए तो मोटा मोटा एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपके पास डाइवर्सिफाइड फंड है, लॉन्ग टर्म इक्विटी है एसबीआई का, आपके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, आपके पास ये बैलेंस एडवांटेज फंड भी है। तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देखिए ठीक है, बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड होता है वो उसमें इक्विटी आपके गोल के हिसाब से है कि नहीं। कई दफा उसमें देखिए इक्विटी बहुत ज्यादा भी हो जाती है, कई दफा कम भी हो जाती है, तो एक डायनेमिक रहता है उसमें। All right, we are now joined by Gaurav, who's calling us from Ghaziabad. जी गौरव, सवाल पूछें अपना। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग जी। दिवाली की शुभकामनाएं। पहला सवाल ये है कि सर ये क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ओनली इन लिस्टेड कंपनीज और दे आल्सो इन्वेस्ट इन कंपनीज विच आर गोइंग टू बी वेरी बिग बिकॉज दिस कुड बी मल्टी बैगर लाइक मेनी HNI और बिग रिच पीपल इन्वेस्ट इन स्मॉलर कंपनीज विच आर इन nascent stages. So is there any fund which finds such companies and invest in such companies so that we can benefit in the longer term in a multi-bagger with multi-bagger stocks? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, स्मॉल कैप में क्यों अभी इन्होंने SIP ही कर रखी है, लमसम टॉप अप बना कर रखा है, स्पेशली इन ICICI and many other funds? Thank you. Yeah, so first of all, what I would like to say is, see, mutual funds generally invest in companies which are listed on the stock exchange. That said, it doesn't mean that they deprive you of multi-baggers. Still, within the listed set of companies, there can be a multi-bagger. So, multi-bagger is a general term, for a stock which has growth potential and, multiplies investors' money many, many times. So, for that, small caps can be one part. So, like if you are, but while investing in small caps, the main consideration should be that your investing horizon is at least 7 to 10 years. And more importantly, small caps are something which fall very sharply when they fall. Like at the same time, when they go up very sharply. They give you very handsome returns. But at the same time, when they fall very sharply as compared to a normal large cap stock. So, coming to the second question, why many small cap funds have, stopped taking lump sum money right now? The main reason is, in comparison to a normal diversified flexi cap or a large cap fund, it is comparatively difficult for the fund manager to, find good opportunities within the small cap sector. Right now, the valuations are slightly heated. So when the fund manager takes in money from the investor, it is his duty to deploy it, in the right manner. So sometimes what they do is when the inflow is very much, so they usually stop they put the gates for lump sum money, or in some cases even on the SIP amount, when they are of a view that they are unable to find enough opportunities in the market in the benefit of the investor. All right, that was nicely explained. अगले कॉलर हैं मथुरा से तरुण। तरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर, मैं तरुण मंसल बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मल्टी एसेट में, म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट में पैसा लगाना ठीक होगा UTI में? मैं कई सालों से कर रहा हूँ वैसे तो म्यूचुअल फंड में। देखिए, जो एक मल्टी एसेट फंड है, इस फंड की डेफिनेशन ये है सेबी द्वारा कि इस फंड को मिनिमम 10% इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और एक और तीसरा एसेट क्लास जो कि आमतौर पे गोल्ड रहता है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बाय लॉ इसकी डेफिनेशन है। तो आमतौर पे जो इन फंड्स में देखा गया है कि वो लोग थोड़ा सा इक्विटी ज्यादा रखते हैं, अपना 50-60 के आसपास रखते हैं, बट उनका डायनामिक रहता है। फंड मैनेजर को पूरी छूट है, वो 10% से लेके 80% के इक्विटी भी जा सकते हैं और फिक्स्ड इनकम भी जा सकते हैं। तो
अगर देखिए मल्टी एसेट फंड नॉर्मली एक जो भी बहुत ही बिगनर इन्वेस्टर है उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो जब भी मार्केट गिरता है तो वो आपको थोड़ा सा डाउनफॉल से कुशन देते हैं। बट इससे ज्यादा बेहतर ये रहता है, मेरा ये मानना है कि एक कोई सा ऐसा फंड जो कि स्टैटिक एलोकेशन हो, जिसमें कि ये तय हो कि ये 60% या 70% इक्विटी में लगाएगा और बाकी का फिक्स्ड इनकम में लगाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि यहां पे आपको नहीं पता कि आपका फंड कब कितना इक्विटी में लगा देगा। फंड मैनेजर को पूरी की पूरी छूट है कि वो 10% से लेकर 80% तक जा सकता है, और इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का जो एलोकेशन है वो आपके गोल के हिसाब से एकदम उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए। गोल्ड ऊपर से ऐड करने के लिए नॉर्मली आप एक एसजीबी ऐड कर सकते हैं, बट अगर अभी आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो कुछ ऐसी मतलब ऐसा कोई बहुत खराबी नहीं है इस फंड में, आप निवेश करते रहिए। All right, we are now joined by Sanjay calling us from the financial capital of the country, that's Mumbai. जी संजय, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल है, क्या क्वांट म्यूचुअल फंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है? क्या ये इनके फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ हैं? देखिए क्वांट खाली मोमेंटम बोलना सही नहीं होएगा कि वो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करता है। उनका एक अपना अलग क्वांट पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे वो लोग ये तय करते हैं कि कब कौन सा शेयर खरीदना है, कब कौन सा शेयर बेचना है। बट हाँ, उनके क्वांट पैरामीटर्स का जैसे जो एक चीज आमतौर पे देखी गई वो ये देखी गई है कि उनके पोर्टफोलियोज में चर्निंग बहुत ज्यादा है। चर्निंग यानी कि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी शेयर खरीदते हैं और बहुत जल्दी जल्दी शेयर बेचते हैं। लेकिन ये कहना कि वो केवल मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो सही नहीं होएगा। तो देखिए अभी उसके जो फंड्स है उनकी जो एक पूरा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, ये एक अनकन्वेंशनल फिलॉसफी है। आमतौर पे ये माना जाता है कि आपको बाय एंड होल्ड करना चाहिए, यानी कि आप पहले कंपनी के बारे में जांच करिए और उसमें लंबे समय तक बने रहिए। बट इनकी जो फिलॉसफी है उससे थोड़ा सा अलग है। इस एएमसी को अभी आए मार्केट में कुछ 3-4 साल ही हुए हैं, कोविड से जस्ट थोड़ा सा पहले आए थे। शुरुआती 1-8 साल बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन कोविड के बाद से जो एक रैली देखने को मिली है उसमें इनके फंड्स ने बहुत अच्छा करा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी ये कैसा करेंगे, अक्रॉस डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा वो अभी देखना बाकी है। तो ऐसे में मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बेट होगी। आप पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा मेजर हिस्सा इसके फंड्स में ना लगाए, एक छोटा हिस्सा लगाए और फिर आगे देखते हैं कैसा इनका रहता है प्रदर्शन। ये कुछ और कॉलर इंतजार में है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, उत्साहजनक खबर है। इस साल के पहले 10 महीनों में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की फंडिंग 12 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। ये 2023 में स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि से अधिक है और अभी इसमें नवंबर और दिसंबर 2024 के आंकड़े शामिल नहीं हैं। अक्टूबर में देश के स्टार्टअप्स ने 119 सौदों में 1 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि प्राप्त की। सितंबर में उन्होंने 1 अरब 63 करोड़ डॉलर्स हासिल किए थे, लेकिन वो दूसरा उच्चतम स्तर था इस साल का। सबसे अधिक धनराशि जून में प्राप्त हुई जो 1 अरब 92 करोड़ डॉलर्स थी। अक्टूबर में ग्रोथ और लेट स्टेज फंडिंग सेगमेंट के 28 सौदे हुए जिसमें कुल 84 करोड़ 62 लाख डॉलर्स की रकम प्राप्त हुई थी। No wonder India is the third largest startup in the world. अगले कॉलर के पास चलते हैं। दिल्ली से उत्कर्ष हमारे साथ है। उत्कर्ष, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, सवाल पूछें। I want to ask that I am interested to buy gold. So which would be a better option, physical gold or gold ETF funds? See, physical gold will definitely not be a good option, simply because one is that you'll have to think of it secure, storing it securely, and secondly, in case you buy it in the form of jewelry or something else, so at the time of liquidating the same there would be multiple charges in the name of making charges and a few other charges. So firstly, it's not good to invest in gold in the physical form in any way. Secondly, usually what we suggest is when you have to invest in gold, if you have to, so the best way to invest in gold is through SGBs, which are sovereign gold bonds.
these are the bonds issued by the government, and over and above the appreciation, the price of the gold, I mean, they are linked to the price of the gold. Over and above that, they give you 2.5% additional interest. That said, the primary issue of these bonds are yet to be seen this year. Like we haven't seen a primary issue for the last few months, but they are still available on the secondary market, though at a premium. Coming to the gold funds or ETFs, if you are planning to buy an ETF, you need to have a demat account. You cannot buy an ETF unless you have a demat account. ETFs are traded exactly like stocks on the stock exchange. And the other factor you need to consider over here is that because given the same, you cannot make an SIP. So, for a normal retail investor, in case you are planning to invest on a recurring basis or you do not have a demat account, probably gold funds would be better in that scenario. And if you already have a demat account, you just want to put in a lump sum amount or something, maybe gold ETF is the option for you. They are slightly less expensive than the gold fund. But that said, your DP provider may add some brokerage charges. That's about buying gold. But I would say that over the long term, do not go very heavy on gold. Over the long term, what we have generally seen is that equities outperform gold. But, whenever equities decline, gold generally shines. So just keep it in a small proportion in your portfolio, probably for hedging purposes. And Aka, to add to what you say, I think the sovereign gold bond you keep for 5 years minimum. You can't take the money out. Yeah, that's right. The money is locked for 5 years. Yeah, so the tenure is 8 years, but after 5 years, you can also get it prematurely closed with the RBI. Mm-hmm. But, provided you have enough liquidity on the stock exchange, you can sell it over there even before 5 years. Right. Thank you. अब कोलकाता से देवांजल हमारे साथ हैं। देवांजल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। देवांजल, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आई थिंक जी, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछें। नमस्ते मार्केट मंत्रा। नमस्कार। हेलो जी, अपना सवाल पूछें देवांजल। कोई अच्छी AMC का म्यूचुअल फंड बताइए, अगले 30 साल के लिए मैं करना चाहता हूँ। 5,000 पर मंथ SIP, बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट AMC। आपने पहले कभी निवेश किया है इक्विटी में? हाँ, 10 साल के लिए, 10 साल से मेरा निवेश है। अच्छा, देखिए, 10 साल से मेरा निवेश है। अगर आप 10 साल से इक्विटी में ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, तो आप देखिए एक फ्लेक्सी कैप फंड चुन सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में मैं कहूंगा कि आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं, अच्छा फंड है। नहीं तो आप पराग पारिक का आपका हो गया। उसके अलावा आप मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। नहीं तो आप फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, HDFC का देख सकते हैं, वो भी अच्छे फंड है। आप इनमें से कोई सा भी फंड चुन सकते हैं। All right, move on to Mumbai. We have Pankaj online. जी Pankaj जी, सवाल पूछें। Hi, good evening. Hi. I want to know what are fixed income mutual funds and how do they provide fixed income, because generally in mutual funds they don't have guaranteed returns. So how do they provide that, and are they good for retired employees, retired individuals? So, I'm sorry. So by fixed income mutual funds, the main thing is that they continue to invest in bonds and debentures, the fixed income, in the sense they don't, unless and until you have opted for a dividend plan, they won't be, crediting some income in that form. So what happens is when there's a price appreciation of the bonds, it gets reflected into the NAV, and likewise, whatever interest they receive, it is reflected in the NAV. Yes, they are suitable for a retiree, but at the same time, what you need to ensure is that the complete portfolio of a retiree is not invested into fixed income alone. It is very important to allocate at least 1/3 of the portfolio to equities so that you are able to generate inflation beating returns. दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं। योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी, पूरी टीम को नमस्कार और नमस्कार। आप सभी को दिवाली की, भाई दूज की, सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में
4 म्यूचुअल फंड है जो कि मैं काफी सालों से इन्वेस्ट कर आ रहा हूँ और इस वक्त उसमें काफी लाखों रुपए डाउन हो चुके हैं। तो मेरे पास में SBI का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप और ICICI लार्ज एंड मिड कैप और पराग पारेख का ELSS फंड है। तो ये क्यों कोई भी मेरा फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा सिवाय ICICI के? इसका क्या कारण है और क्या ये पोर्टफोलियो में कुछ सैटेलाइट एलोकेशन के लिए आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए कुछ नया फंड प्रोवाइड कर पाए? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट है पिछले कुछ दिनों में लगभग महीने भर में मार्केट काफी नीचे आया है। सेंसेक्स पहले 86,000 तक पहुंच गया था, अभी 79,000 समथिंग पे आ गया। सो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 5-6% का मार्केट में गिरावट आई है। सो इस वक्त सारे फंड्स का और खासतौर पे स्मॉल कैप फंड्स का और ज्यादा गिरना एकदम आम बात है और ऐसा नहीं है कि ये पहले दफा हुआ है। अभी देखिए 2020 के बाद से जब से मार्केट ऊपर जा रहा था उसके बाद से थोड़ा सा एक अभी शार्प डिक्लाइन हम लोगों ने देखा है, लेकिन ऐसे डिक्लाइंस पहले बहुत बार आए हैं। जो आपने फंड्स के नाम बताए इसमें बहुत ज्यादा कोई मेरे को एज सच कोई दिक्कत नहीं लगी, बट हाँ जो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने एक असेट एलोकेशन पे जरूर काम करिए। आप एक तो ये देखिए कि आपको कितना इक्विटी में रखना है, कितना फिक्स्ड इनकम में रखना है अपने गोल के हिसाब से, और जो इक्विटी का पोर्टफोलियो उसमें भी आप ये देखिए कि आप स्मॉल कैप में कितना एलोकेट करना चाहेंगे। आमतौर पे हम लोग ये कहते हैं कि आपके एक इक्विटी पोर्टफोलियो का लगभग 70% लार्ज कैप में रहना चाहिए और 20 से 30% मिड और स्मॉल कैप में रहना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ, स्टेबिलिटी और एक हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल भी आता है। स्मॉल कैप्स आपको रिटर्न ज्यादा देते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, जब गिरते हैं जोर से गिरते हैं। तो अभी मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है और जैसे जो एक आपने एक बात बताई, सबसे पहले जरूरी आप अपना असेट एलोकेशन पे काम कीजिए और देखिए आप कितना इक्विटी में रखना चाहेंगे, कितना फिक्स्ड इनकम में, और उसके हिसाब से रिबैलेंस करिए। चाहिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। अगले सप्ताह शेयर बाजार का फोकस कॉरपोरेट आमदनी, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की बैठक पर रहेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 नवंबर को होने वाला, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की किस्मत का फैसला होगा। इस बीच बाजार की नज़र 7 नवंबर को FOMC द्वारा ब्याज दरों पर लिए जाने वाले फैसले पर भी टिकी है। अक्टूबर में पिछली बैठक में सेंट्रल बैंक ने फेडरल फंड्स रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। शेयर बाजार की नज़र स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स, टाइटन पावर ग्रिड, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा समेत 550 कंपनियों की जुलाई से सितंबर तिमाही की आमदनी पर भी टिकी रहेगी। आइए अगले कॉलर के पास चलते हैं। शिमला से राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये जानना है, जैसे मैं म्यूचुअल फंड में एक साथ सारा पैसा लगाता हूँ तो उसमें मुझे कितना फंड मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो एक म्यूचुअल फंड है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसमें आप एक साथ पैसा मत लगाइएगा। अगर आपके पास एक पूंजी इकट्ठी हो भी गई है तो भी उसको कम से कम 6 महीने से 1 साल में, डिपेंडिंग ऑन कि वो पैसा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से तोड़ तोड़ के लगाइएगा। और इसमें रिटर्न्स आपको एक FD के तरफ फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये मार्केट से लिंक्ड होते हैं। Right. We can have a quick call. I think we've... anyway, let's move on to the stories of both. Yes? Yes, Defense Minister Rajnath Singh has said that India's Atmanirbhar drive is yielding the desired results and the country is poised to reach 50,000 crore rupees in defense exports by 2029-30. And we move on to the next story. जी हाँ, और कुछ आंकड़े हैं विदेशी निवेश के कि पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से 94,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम निकाली है। लेकिन इसके साथ ही ये आंकड़े भी हैं कि काफ़ी भरपाई इसकी हमारे घरेलू निवेशकों ने कर दी है, इसलिए बाजार पर शायद इसका बहुत ज़्यादा असर ना पड़े आने वाले समय में। तो जी, आपके पास कुछ और है? I think we can, it's time to wind up. जी हाँ, समय इतना ही है। आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छी जवाब देने के लिए, बहुत सार्थक जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
All right, friends, before we close, here's a reminder of the headlines. India is on a high growth trajectory and wants to grow with world, says Foreign Minister S. Jaishankar in Brisbane today. Indian startup ecosystem reaches over $12 billion in funding in first 10 months of this year. And domestic markets to focus on corporate earnings, U.S. presidential polls, U.S. Federal Open Market Committee meet for Qs next week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar. Market Mantra.